नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। आखिरकार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट का फैसला आ गया है। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. कोर्ट ने यह कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए संजय रॉय को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आए फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। कोर्ट के आए फैसले के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोर्ट के आए फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आइए सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा। आरजी করে রায় নিয়ে কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেইলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকেই ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি। আমরা এটাই বলেছিলাম আমাদের হাতে এই কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেক দিন আগেই ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিতে পারতাম, ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করেছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। দিদি সিবিআই তদন্তে কি কোনো ত্রুটি রয়েছে? আমি সব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এ কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড, কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया था और सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह से ही पूरे देश की नजर इस मामले पर आने वाले फैसले पर टिकी हुई थी। सियालदह कोर्ट दोषी करार दिए गए संजय रॉय को क्या सजा सुनाती है, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। आने वाले फैसले के मद्देनजर सुबह से ही कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब फैसला आया तो सब कोई हैरान रह गए। हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि अदालत इस मामले में संजय रॉय को मौत की सजा सुनाएगी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए संजय रॉय को मौत की सजा नहीं सुनाई कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, यानी यह अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मामले के 164 दिन बाद दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद वकीलों ने इस फैसले के बारे में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় তার যে সাজার মেয়াদ ঘোষণা হয়েছে লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জাজ 1 নম্বর শিয়ালদা এই মুহূর্তে ঘোষণা করেছেন। সেখানে সঞ্জয় রায়কে যে গত 18 জানুয়ারি 2025 3টি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বিএনএস এর যে 64 ধারায় তার যাবজ্জীবন হয়েছে, 66 নম্বর ধারায় তাকে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে এবং 103 এ খুন অর্থাৎ মার্ডারের জন্য তাকে যাবজ্জীবন এবং 3টে সেকশনেই ফাইনও করেছেন এবং অনাদায়ে আরো জেলের জেলের প্রভিশন রেখেছেন এবং আদালতেও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর পক্ষ থেকে এবং ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ফাঁসির সাজা বা ফাঁসির দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত বলেছেন এই বিষয়টা আমি মনে করছি
রেয়ারেস্ট অফ রেয়ারেস্ট ম্যাটার নয় বা বিষয় নয়, সেই কারণে আমি এখানে ফাঁসি অর্থাৎ ডেথ সেন্টেন্স বা ক্যাপিটাল সেন্টেন্স আমি দিচ্ছি না। আমি আমৃত্যু কারাবাস 66 নম্বর ধারায় বিএনএস এর এবং 64 এবং 103 এর একের ধারায় সেখানে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্টেটকে নির্দেশ দিয়েছে ভিকটিমের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। लोअर कोर्ट ने 18 जनवरी को आरजीकर मामले में संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया था। मामले में सजा सुनाई जाने से पहले संजय रॉय ने अदालत से कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। उसने कहा, जेल में मुझे पीटा गया और मुझसे जबरन कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यवाही के दौरान सीबीआई के एडवोकेट ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। संजय रॉय के वकील ने कोर्ट से कहा कि संजय रॉय के खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं जिससे यह साबित हो सके कि दोषी के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ संजय रॉय के वकील ने दोषी संजय रॉय को सुधरने का मौका देने के लिए मौत की सजा के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक सजा का अनुरोध किया, जबकि पीड़ित पक्ष के वकील ने दोषी के लिए कड़ी सजा का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि संजय रॉय एक वॉलेंटियर होने के नाते अस्पताल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने खुद ही उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलेंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थी। इस केस में सीबीआई ने संजय रॉय समेत 2 लोगों को आरोपी बनाया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से 13 दिसंबर को उसे जमानत दे दी गई। इसके अलावा अभिजीत मंडल के खिलाफ भी चार्जशीट दायर न करने की वजह से उसे भी जमानत मिल गई। आरजीकर मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ था। टास्क फोर्स ने 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। संजय रॉय के खिलाफ टास्क फोर्स को क्राइम सीन से कई सबूत मिले थे। सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हॉल में घुसते हुए और फिर कुछ समय बाद वहां से निकलते हुए देखा गया। टास्क फोर्स को सेमिनार हॉल से एक टूटा ब्लूटूथ एयरफोन भी मिला। ये दोषी के फोन के साथ कनेक्ट हो गया था। इसके साथ ही संजय रॉय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता के खून के निशान मिले थे। संजय रॉय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हो गया था और सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इसमें संजय रॉय को एकमात्र आरोपी बताया गया। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंग रेप नहीं हुआ था और सीबीआई की चार्जशीट में 100 गवाहों की बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन शामिल रही। इस जघन्य कांड के बाद न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि आखिर अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। दरिंदगी की शिकार हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता पिता को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। सीबीआई की जांच भी सवाल के घेरे में। आखिर अदालत भी सबूत के आधार पर ही फैसला सुनाती है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।